Students, in this video we will study lesson number 15, prepositions. The word preposition as is indicated by the prefix pre. किससे indicate होता है? इसमें क्या जुड़ता है? prefix pre जुड़ता है position के साथ में. It is a word or group of words that is placed before a noun or pronoun to indicate direction, method, place, source, etc. क्या वर्ड होता है? ये किसके पहले प्लेस किया जाता है? नाउन और प्रोनाउन के पहले प्लेस किया जाता है. वो आपको क्या इंडिकेट करता है? अबाउट द डायरेक्शन, मेथड, प्लेस एंड समथिंग एल्स. और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन जो उसमें सेंटेंस में शो करता है कि किसी और वर्ड के साथ उसका क्या रिलेशन है. इट इज़ शोन विद द हेल्प ऑफ द प्रपोजिशन. लुक एट द एग्जाम्पल. द प्रपोजिशन में जॉइन वन नाउन टू अनदर. एक नाउन को दूसरे से ज्वाइन करता है. जेन वॉज इन द किचन. जेन एंड किचन. जेन भी एक नाउन है और किचन भी. यहाँ पे रिलेशन शो कर रहा है कि जेन कहाँ पे है. जेन वॉज इन द किचन. सो हेयर in is the preposition which shows the relation between Jane and kitchen, both the noun. It may join noun to a verb. Noun को verb से join करता है. The word slipped and stairs in this sentence. She slipped off the stairs. She slipped off the stairs. Stairs से वो slip हो गई. It may join noun to an adjective. Noun को adjective से join करता है. Proud and country. We are proud of our country. किस पे proud है हमें? अपनी country पे. Here of is the preposition which joins noun with the adjective. Now preposition of time. At. We use at with specific times. At हम किसके साथ यूज़ करते हैं? Specific times के साथ. Hours या minute में दिया होता है. I get up at 7 o'clock. यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई किया गया है. यहाँ पे क्या प्रपोजिशन लगेगी? एट, विच शोज यू अबाउट द प्रपोजिशन ऑफ टाइम. माई इंग्लिश क्लास स्टार्ट्स एट 10 AM. शी फिनिशेज वर्क एट 6:15. आई लेफ्ट द पार्टी एट midnight. So here the function of the preposition is to show the relation in which a noun or a pronoun stands to some other words in the sentence. Okay. Now author's tip. Midnight and midday is a specific hour which is why we use at. At हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि midnight का टाइम हो या midday हो तो वहाँ पे हमको वो specific hours locate कर रहा है. तो यहाँ पे हम at यूज़ करते हैं. यहाँ पे ये देखिए at midnight यूज़ किया गया है. 12 AM that is midnight. 12 PM midday नून का समय कहलाता है. Now look at these examples. Do you normally get together with your relatives at Christmas? Did you eat a lot of chocolates at Easter? On. We use on for specific days and dates. Specific days या dates की बात की जाए, ये आप underline कर लेंगे point और इसको याद रखेंगे that we use on for specific days and dates. Specific days या dates के साथ में हम क्या use करते हैं? On करते हैं. Now look at these example. Number 1, I will return it to you on Wednesday. यहाँ पे भी आपको specific क्या दिया हुआ? particular day बताया गया है कि मैं आपके पास Wednesday तक return आ जाऊँगा. We get paid on the 20th of every month. हर month की 20th को हमको payment मिलती है. Remember that for dates we use ordinal numbers. डेट्स के लिए हम ऑर्डिनल नंबर्स का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, द 1st of September, नॉट द 1 of September. यहाँ पे हम 1st of September ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं. ऑर्डिनल नंबर लाइक जो पोजीशन शो करते हैं वर्ड्स लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एट्सेट्रा. सो वी यूज़ इन फॉर स्पेसिफिक मंथ्स, ईयर्स, सेशंस, सेंचुरीज एंड लेंथ ऑफ टाइम. लुक एट दीज एग्जाम्पल. माई बर्थडे इज़ इन January. So here I don't mention the date, just the birthday is in January. So यहाँ पे I don't mention the date, just the month. यहाँ पे date नहीं mention की गई है, just month mention किया है. So here we have to use in. My grandmother was born in 1927. यहाँ पे भी date mention नहीं की गई है, just year only. The river near my house is dry in summer. The company was founded in the 19th century. We need to have this report ready in 15 minutes. So here are the example where you have to use in.
स्पेसिफिक मंथ्स, ईयर, सीजन्स दिए हैं, सीजन्स के आगे जैसे कि समर, सेंचुरीज़ के नेम के आगे ये सेंचुरीज़ दी गई हैं, तो यानी कि आपको ईयर मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे आपको कौन सा यूज़ करना, प्रपोजिशन इन यूज़ करना। कंपेयर, द न्यूजीलैंड नेशनल डे इज़ इन फेब्रवरी, वी डोंट मेंशन द डेट, ओनली द मंथ, यहाँ पे मैं डेट मेंशन नहीं की है, मंथ मेंशन किया गया है फेब्रवरी में, यहाँ पे भी हम इन यूज़ करेंगे। द न्यूजीलैंड नेशनल डे इज़ ऑन फेब्रवरी 6th, न्यूजीलैंड का नेशनल डे कब पड़ता है, ऑन फेब्रवरी 6, यहाँ पे डेट मेंशन है, so here you have to use on. We mention the day, the order is not important. मेंशन करते हैं हम डे, वहाँ पे ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं करता है कि हम किस ऑर्डर में मेंशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डेट मेंशन की गई है, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज ऑन. द वीकेंड, सम टाइम यू विल हियर एट द वीकेंड एंड सम टाइम ऑन द वीकेंड, they are both correct. On the weekend is used in United States. On the weekend कहाँ पे यूज़ होता है, यूनाइटेड स्टेट्स में. Where did you go on the weekend? यूनाइटेड स्टेट्स. Where did you go at the weekend? ये ब्रिटिश लैंग्वेज है, so that is the difference. यूनाइटेड स्टेट्स में on यूज़ किया जाता है एंड ब्रिटिश में at यूज़ किया जाता है. Understood? So we don't use prepositions. Remember, we do not use at, on, in or the with the following expression. कौन सी expressions के साथ हम ये वाली prepositions नहीं यूज़ करेंगे, today, tomorrow, yesterday, this morning, tonight, last, next, every, इन सारे expressions के साथ में हम at, on, in और दा का यूज़ नहीं करते हैं. डिफरेंस बिटवीन इन टाइम एंड ऑन टाइम, इन टाइम और ऑन टाइम जो एक्सप्रेशंस हैं उनके बीच का डिफरेंस. इन टाइम मीन्स वेल विद इन दिस टाइम, इन टाइम मीन्स विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, जो भी मेंशन टाइम है उसके अंदर. एग्जाम्पल, इन स्पाइट ऑफ द डिले इन फ्लाइट ही वॉज इन टाइम टू चेयर द मीटिंग, मतलब डिले थी, उसकी फ्लाइट देर से आई, उसके बाद भी दैट पर्सन वॉज इन द टाइम फॉर द मीटिंग. On time means exactly on that time, exactly at the right time. For example, in spite of the fog, the flight was in time means कोहरा होने के बाद भी फ्लाइट क्या है, राइट टाइम पे आई है. At is used before the exact time. At हम कब यूज़ करते हैं, before the exact time, exact time के पहले. Read about its usage, अब हम उसका यूज़ पढ़ेंगे. So see, here the table is given, uses of at एंड देयर एग्जाम्पल. बिफोर स्पेशल डेज, स्पेशल डेज के पहले हम यूज़ करते हैं. वी वर एक्सपेक्टिंग गेस्ट एट क्रिसमस, कब यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेक्ट करें गेस्ट की क्रिसमस के पहले. शी वॉन्टेड टू मीट एट द वीकेंड, स्पेशल डेज की बात की जा रही, वीकेंड भी एक स्पेशल है, तो वी वॉन्टेड टू मीट मी, सॉरी शी वॉन्टेड टू मीट मी एट द वीकेंड. बिफोर स्पेशल वर्ड्स फॉर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द डे, स्पेशल वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, कुछ डे का कुछ एक स्पेशल हिस्सा उसकी बात की जाए, देन वी विल यूज़ एट. अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स कम टू द जू बिहाइंड अवर हाउस एट डॉन, डॉन मीन्स मॉर्निंग के समय में बहुत सारे एनिमल्स जू पे आते हैं हमारे घर के पीछे मॉर्निंग में. द सन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एट मिड डे, मिड डे में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, यस ऑफकोर्स, मिड डे में यानी नून में सन की जो लाइट है बहुत स्ट्रॉन्ग फील होती है. आर यू गोइंग आउट एट नाइट, ये भी पर्टिकुलर टाइम की बात की जा रही है, तो यहाँ बिफोर दैट वी हैव टू यूज़ एट. डॉन, मिड डे, एट, ऑल दीज आर द पर्टिकुलर स्पेशल पार्ट्स ऑफ द डे, दिन का एक पर्टिकुलर स्पेशल हिस्से की बात की जा रही. बिफोर क्लॉक टाइमिंग, क्लॉक टाइमिंग दी हो उसके पहले भी एट यूज़ करते हैं. आई वुड लाइक टू मीट यू एट 5 AM, द ट्रेन लीव्स फॉर अल्मोड़ा एट 7 PM, तो ये आपके समय की बात की जा रही. बिफोर दैट ऑल्सो वी हैव टू यूज़ एट. बिफोर सम टाइम रिलेटेड वर्ड्स लाइक टाइम, मोमेंट एंड बिगिनिंग, स्टार्ट, etc. So before these words we have to use at. The girl escaped from the kidnappers at the end of the story. At the time of her birth she was named Madonna. So before these words you have to use at. So go through this table and learn it by heart. Now next, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, वो वाली प्रपोजिशंस जिससे आपको प्लेस लोकेट करना है, लोकेट होती हैं. लुक एट दिस एग्जाम्पल. एट, ऑन एंड इन हैव यूज्ड एज प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस.
द सोफ़ा इज़ इन माई ड्राइंग रूम, तो सोफ़ा की परफेक्ट लोकेशन बताई जा रही है, दैट इज़ इन माई ड्राइंग रूम. Mrs. George lives in Delhi. It shows the position within the land areas. Mrs. George lives in Delhi. यहाँ पे in का यूज़ हुआ है. I placed my bottle on the table. Table पर रखा हुआ है मैंने place. So that is the position shows on a horizontal or vertical surface. I lived at 25 JC Road. It shows the specific place and position. Sometime is at the window. Perfect place बताई जा रही कि at the window. So before these type of locations we have to use these type of words. Place can be indicated by a few other prepositions as well. For example, stood behind the wall, above the shelf, stand by my side, lies near the port, came from America. आप ये सारे एग्जाम्पल्स में क्या देख सकते कि एक लोकेशन शो की जा रही. बिहाइंड मीन्स पीछे, एवव ऊपर, स्टैंड बाय माई साइड मेरे बाजू से खड़े हो, लाइज नियर द पोर्ट पोर्ट के पास, केम फ्रॉम अमेरिका अमेरिका से आया है, ले अंडर द बेड, विद इन द क्लासरूम, लाइज बिलो द सरफेस, फेल इनटू अ लार्ज क्रेटर, स्टूड बिसाइड मी. सो ऑल दीज preposition shows you about the location of the noun or pronoun. So go through it and study well. We will do the other part in the next video.